So yes, students, we were discussing about chemical properties of alkanes. Okay, and we have done one property, that is halogenation. एक property हम discuss कर चुके थे. Next, combustion is now deleted by CBSE. Third property जो है controlled oxidation कह दो या catalytic oxidation. This is the reaction of alkanes with oxygen in the presence of different oxidizing agents. And you need to remember this thing, that when alkanes are oxidized, then alcohols, aldehydes, ketones or carboxylic acids can be formed depending on the catalyst that we are using. The first example, when methane is, you can write this statement first, catalytic oxidation. I think I dictated that day, na? तो उसमें first लिखो पहले, when methane is oxidized in the presence of copper at 573 Kelvin and 100 atmospheric pressure. Methanol is formed. Methanol is formed. Second, first write the equation. What happened? 570. 570. Second, when methane is 20 कर लो, फिर confusing है the temperature approximately range वही है 500 के around. When methane is passed over heated molybdenum oxide, when methane is passed over heated molybdenum oxide, MO2O3, in the presence of oxygen, methanol is formed. Methanol is formaldehyde. Written. Third one, when higher alkanes, मीथेन के अलावा, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन है, तो स्टार्टिंग विद मीथेन you can say, when higher alkanes are oxidized in the presence of silver oxide, और आपकी बुक में मैंगनीज एसीटेट भी दिया हुआ एज अ कैटलिस्ट, सिल्वर ऑक्साइड और manganese acetate, carboxylic acids are formed. When higher alkanes are oxidized in the presence of silver oxide or manganese acetate, carboxylic acids are formed.
in this way you can write these three different reactions. On the basis of catalyst, you can say products are formed, alcohols, aldehydes or carboxylic acid. These are controlled oxidation, means बर्न नहीं किया हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्केन्स को, रादर जस्ट दे आर ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस डिफरेंट कैटलिस्ट. और टर्शरी एल्केन्स जो है, दे एक और एग्जांपल है वो भी लिख लो, फोर्थ वन. टर्शरी एल्केन्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड विद alkaline potassium permanganate to form tertiary alcohols. एक तरह का टर्शरी एल्केन है, तीनों साइड एक एक कार्बन है, सेंट्रल कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एल्कलाइन KMnO4. एल्कलाइन KMnO4 आपको पता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, is used in various reactions in organic chemistry. So it oxidizes यहाँ पर ये alcoholic group आ जाएगा, तो tertiary alcohols are formed by this method. सिर्फ ये tertiary कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करेगा alkaline KMnO4, otherwise जो 1 degree 2 degree alkanes है, they are not you can say reactive towards, तब उनको आप ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते एल्कलाइन KMnO4 यूज करके, ठीक है. तो पोटेशियम परमैंगनेट कैन ऑक्सीडाइज ओनली टर्शियरी कार्बन आयंस, so tertiary alkanes can show this reaction. So this is how alkanes can be converted into variety of compounds having oxygen. After this, next reaction is isomerization. The term का मीनिंग isomerization means isomers प्रोड्यूस करना. ये रिएक्शन बेसिकली यूज होता है स्ट्रेट चेन एल्केन को ब्रांच्ड एल्केन्स में कन्वर्ट करने के लिए, और डेली लाइफ में इसका यूज है. जो इंडस्ट्रीज पेट्रोलियम वगैरह रिफाइनिंग करती है, वहां पे पेट्रोलियम का एक मतलब में स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नंबर कम करके उनको ब्रांच चेन में कन्वर्ट करना, उससे थोड़ी सी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, नॉकिंग कम हो जाती है पेट्रोल के अंदर, तो वहां ये रिएक्शन यूज होता है. रिएक्शन क्या है? फर्स्ट यू राइट स्टेटमेंट, straight chain alkanes can be converted into branched alkanes by heating them with aluminium chloride and HCl at a high pressure. Normal hexane, suppose if you have taken, when it is heated with aluminium chloride, anhydrous aluminium chloride hydride, इसको HCl के साथ मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट करना है. कैटलिस्ट है यहाँ पे anhydrous AlCl3. So this normal hexane will be converted into branched chain. हो गया 2-methyl pentane, साथ में थोड़ा सा मतलब ये दोनों ही मेजर कंपाउंड्स हैं. 2-methyl pentane and 3-methyl pentane. These are the major products obtained after isomerization of normal hexane. इसके अलावा और आइसोमर्स भी थोड़े-थोड़े मतलब अमाउंट में बनेंगे, बट माइनर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस में दिखते नहीं है. मेजर प्रोडक्ट्स ही हैं. नेम अगर लिख लो 2-methyl pentane,
दिस इज 3-methyl pentane. तो दोनों ही ब्रांच आइसोमर है. तो इन दिस वे these straight chain alkanes can be converted into branch chain alkanes. Approximately temperature 573 के around है. High temperature pressure है 10 to 20 atmosphere you can say. Last reaction. Aromatization. टर्म बेटा पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा. कोई आइसोमराइजेशन का मतलब आइसोमर्स बना. ये है एरोमेटाइजेशन. एरोमेटाइजेशन का मतलब ये एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एल्केन्स, ठीक है, इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना. मतलब आप बेंजीन या उसकी कोई डेरिवेटिव बना सकते हो. तो ऑब्वियसली बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड. उसके लिए आपको 6 कार्बन वाला एल्केन लेना होगा. तो बेसिकली ये रिएक्शन जो होगा वो हेक्सेन या उससे हायर एल्केन शो करेगा. उससे नीचे वाला लेंगे, ठीक है. तो हायर एल्केन्स when they are heated with actually catalyst एक mixture होता है यहाँ पे chromium oxide, vanadium oxide and molybdenum oxide, P2O3, Cr2O3 and MO2O3, vanadium pentoxide. तो ये तीनों ऑक्साइड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम, इनके ऑक्साइड्स को सपोर्ट किया जाता है. एक एल्यूमिना एक पोरस सॉलिड है, उसके ऊपर ये सारे ऑक्साइड्स को सपोर्ट करके इस मिक्सचर के साथ हीट करना है हेक्सेन या हेप्टेन को, स्ट्रेट चेन एल्केन्स को, ठीक है, अराउंड 773 केल्विन टेम्परेचर. तो ये पहले इसमें से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वो जो स्ट्रेट चेन है वो एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा. उसके बाद फिर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स की फॉर्म में उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे. तो ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीहाइड्रोजनेशन होता है. डीहाइड्रोजनेशन मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और साथ में साइक्लाइजेशन भी हो जाता है. दोनों को मिला के कलेक्टिवली हम कहते हैं एरोमेटाइजेशन, ठीक है. राइट डाउन योर स्टेटमेंट फर्स्ट. हेक्सेन और हायर एल्केन्स on heating with oxides of vanadium, chromium, सिंबल लिख लेना, vanadium, chromium और molybdenum, supported over एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिना एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है एल्यूमिनियम का, जिससे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन भी होता है. जैसे बॉक्साइट सुना होगा आपने, बॉक्साइट, एल्यूमिना, ये नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स हैं एल्यूमिनियम के. सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना एट 773 केल्विन, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्चुअली एल्केन्स की सारी रिएक्शंस आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे मिलेंगे. अदरवाइज एल्केन्स आर क्वाइट स्टेबल कंपाउंड्स, इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करते. फॉर्म बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव by removal of hydrogen molecules. यहाँ स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की बना सकते हो. अदरवाइज दिस इज अ सिंपल वे टू राइट. आप 2 टर्मिनल कार्बन शो करो, अगर हेक्सेन लिख रहे हो बीच में जितने भी आएंगे उनके साथ आप ये नंबर लगा दो. तो इन दिस वे यू कैन राइट नॉर्मल हेक्सेन, firstly this compound is obtained. I am drawing only the bond line structure. ये क्या है बेटा? साइक्लोहेक्सेन. मतलब
CH3 ये और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए जो टर्मिनल कार्बन थे, और एक हाइड्रोजन इसका कम हुआ, एक हाइड्रोजन इसका। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड दिस स्ट्रेट चेन कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक हेक्सेन। मतलब नॉर्मल हेक्सेन से आपको साइक्लोहेक्सेन मिलेगा पहले, और उसके बाद सेम अगला स्टेप जो है इसी कंडीशन में आपको मतलब बीच में मिलेगा तो फाइनल एक ही प्रोडक्ट। जब हम लिखते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब डीहाइड्रोजनेशन हुआ फर्स्टली, तो ये दोनों टर्मिनल एल्के मतलब जो ग्रुप थे वो कंबाइन हो गए इन दिस फॉर्म ऑफ रिंग, और उसके बाद 3 हाइड्रोजन और रिमूव हो गए, यू विल गेट बेंजीन। अब आप इसको अगर प्रॉपर वैसे बनाना है तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, देन आल्सो यू कैन राइट इन दिस मैनर, हर एक के साथ दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। And in benzene, you know that it is 1 hydrogen with each carbon. In both format you can write. Otherwise, cyclic compounds के लिए simple ring बनाओ, it's understood. So this is how aromatization takes place. Aliphatic compounds like hexane can be converted into benzene. Suppose if we are taking this compound, ये आपकी बुक में एक साथ ही उन्होंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है, अगर आप हेप्टेन का एरोमेटाइजेशन करवाते हो, कैन एनीवन टेल व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? टॉलुएन। गुड। हेप्टेन से क्या होगा? 7 कार्बन है इस चेन मतलब कंपाउंड में, तो 6 कार्बन चेन बना दो और एक ग्रुप ऐसे ही रहेगा, तो दिस इज व्हाट? टॉलुएन। तो टॉलुएन इज प्रिपेयर्ड बाय एरोमेटाइजेशन ऑफ नॉर्मल हेप्टेन। सेम कंडीशंस है, माइनस पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव करो, उसके बाद आप अदरवाइज कलेक्टिवली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4H2 यू कैन रिमूव कलेक्टिवली टू फॉर्म द पर्टिकुलर एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब बेंजीन पहले बनाना है, उसके बाद जितने ग्रुप्स हैं वो, अगर ये 8 कार्बन वाला है तो ये इथाइल बेंजीन मिल, तो इस तरह से कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के आप बना सकते हैं। बेंजीन की प्रिपरेशन में ये यूज भी होती है रिएक्शन। इथाइन को भी बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्सेन को भी, दोनों ही रिएक्शन आपको फिर बेंजीन वाले टॉपिक में करनी है। तो विद दिस एल्केन्स आर ओवर रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज। बस ये जितनी हमने डिस्कस किए हैं क्लास में उतने ही करने की जरूरत है आपको, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स में से नहीं करना। पायरोलिसिस हटा दिया सीबीएसई ने अभी इस साल के लिए, और कंबशन हटा दिया। पायरोलिसिस का मतलब होता है क्रैकलिंग, क्रैकिंग, तोड़ना, बड़े मॉलिक्यूल्स लार्ज हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करना, बट दैट प्रोसेस इज रिमूव्ड, डिलीटेड फॉर दिस ईयर। नेक्स्ट जब एक टॉपिक बचा हमारा एल्केन्स का, दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, वो करके हम कंप्लीट करते हैं एल्केन्स, देन स्टार्ट विद एल्केन्स। Conformational isomers. If you remember ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम बेसिक्स कर रहे थे, आपको मैंने बताया था आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है। एक वो आइसोमेरिज्म जिसमें कोई भी कंपाउंड, जैसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 का, तो इसकी कितनी तरह की स्ट्रक्चर्स बना सकते, वो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें आप चेन बना दोगे, या अगर फंक्शनल ग्रुप आया तो उसकी पोजीशन चेंज कर दी, मेटामरिज्म हो सकता है। तो ये वैरायटी ऑफ जिसमें आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट कर सकते हो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, वो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। दूसरे टाइप के आइसोमरिज्म वो होती है जिसमें एक ही स्ट्रक्चर के लिए, जैसे सपोज हमने एक एल्केन बनाया, स्ट्रेट चेन एल्केन था, नॉर्मल पेंटेन ही सपोज कर लो, तो उस नॉर्मल पेंटेन के लिए भी आप अगर वैरायटी ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट हाइड्रोजन एटम के चेंज कर सकते हो, तो वो ऐसी डिफरेंट फॉर्मूले जो एक ही स्ट्रक्चर के लिए भी पॉसिबल है, वो होता है अगर आप किसी भी बॉन्ड को रोटेट कर सको और उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पॉसिबल है एटम्स की, तो वो वाली आइसोमेरिज्म जो है जो एक ही फॉर्मूला के लिए पॉसिबल है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वही है लेकिन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो 2 तरह की आइसोमेरिज्म होती है ऑर्गेनिक में,
एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो आप कर चुके हो उस चैप्टर में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने वहां उस चैप्टर में नहीं की थी। 3 टाइप्स की होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक है ज्योमेट्रिकल जिसमें सिस ट्रांस जो डबल बॉन्ड वाले शो करते हैं, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो सिंगल बॉन्ड एल्केन्स शो करते हैं, और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो आपको 12th में सिलेबस में अभी नहीं, ठीक है। तो अभी हम करेंगे ज्योमेट्रिकल जो है वो सिस ट्रांस वाली एल्कीन्स में पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हमने कन्फर्मेशनल आइसोमर्स करने, कन्फर्मेशंस का मतलब है कि एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिर्फ आपको इथेन के ही सिलेबस में, अदरवाइज तो बाकी भी एल्केन शो करते हैं, बट इथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मीथेन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इस तरह की कन्फर्मेशनल आइसोमर है जिसमें एक सिंगल बॉडी जो कार्बन कार्बन के बीच में है, इसको अगर हम रोटेट कर दे, सपोज हमने ये तीनों हाइड्रोजन फिक्स कर दिए और इस सिंगल बॉन्ड को हम, जैसे आप ये पेंसिल समझ लो यहाँ पर है, उसको आप रोटेट करते हो, एक तरफ फिक्स कर दिया दूसरी तरफ रोटेट कर रहे हो, तो ये जो 3 हाइड्रोजन एटम है अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली इनकी चेंज हो जाएगी। सपोज ये 3 है, ये हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पर जो 3 है उनको हम रोटेट कर, तो ऐसे पॉसिबल है ना डिफरेंट। अब फॉर्मूला तो CH3 हमने इथेन का फॉर्मूला तो चेंज नहीं किया, जस्ट हमने पोजीशन हाइड्रोजन की चेंज कर दी। तो एक ये पोजीशन देखो जिसमें एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने आ, इस पोजीशन में आपको, अगर आप वहां से देखोगे आपको ये 3 फिंगर्स नजर आएंगी, बट ये इक्लिप्स्ड होगी, मतलब इसके एकदम एग्जैक्टली पीछे होंगी। तो आप फ्रंट से देखोगे तो आपको बैक वाले हाइड्रोजन नजर नहीं आएंगे। तो एक ये पोजीशन पॉसिबल है, इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड, एक दूसरे की, मतलब जैसे आप इक्लिप्स नॉर्मली हम सोलर और ल्यूनर यूज करते हैं ना टर्म, तो उसी फॉर्म में कि इन्होंने हाइड कर दिया इसको। और दूसरी पोजीशन कौन सी पॉसिबल है, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए, मतलब इन 2 हाइड्रोजन के बीच में एक आ गया एक इधर आ गया, इस, और तीसरा डाउनवर्ड्स। तो इस तरह से 2 एक्सट्रीम केसेस सेलेक्ट किए हुए हैं इधर इथेन के लिए। तो जो एकदम एग्जैक्टली ऑपोजिट एक दूसरे के, वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, और दूसरी जो बिल्कुल एग्जैक्टली मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में सेंटर में जो दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। और बाकी इन बिटवीन जितनी भी पॉसिबल है स्ट्रक्चर, उनको स्क्यू कन्फर्मेशंस करते हैं, बट ड्रॉ हमने यहाँ पे 2 ही करनी है। ड्रॉ कैसे करनी है उसके लिए 2 फॉर्म, मतलब साइंटिस्ट ने मेथड दिया था इसको शो करने का, सॉहॉर्स प्रोजेक्शंस और एक है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये सपोज एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ठीक है, लिखना नहीं है हमने कार्बन, क्योंकि हम जब ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। सपोज ये 3 हाइड्रोजन एटम्स फर्स्ट कार्बन, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट आया यहाँ पे ये कार्बन, इसके ऑपोजिट ये वाला आ गया, इसके ऑपोजिट ये वाला, तो ये वही होगी कि एकदम हाइड हो जाएंगे दोनों। तो दिस इज कॉल्ड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और दूसरी पॉसिबिलिटी है, इनको मैं यहीं पे रख रही हूँ, मतलब एक साइड आपने कांस्टेंट रखनी है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन रोटेट करने। तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट ये डाउनवर्ड ड्रॉ कर दो, ये इस तरह, इसको यहाँ ले जाओ, ये भी नीचे को इसको ऐसे बना, मतलब आपने ऑपोजिट कर देने हैं दूसरे एग्जैक्टली। ये इनके अगर हम देखें तो 0 डिग्री एंगल पे थे, ये उसके एग्जैक्टली हाफ इन बिटवीन आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है हाइड्रोजन। बस ये ड्रॉ ही करने आना चाहिए आपको, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन एज सच पॉसिबल वो जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में करने की। ये है सॉहॉर्स प्रोजेक्शंस। ये क्लियर हो गया इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड का मतलब, समझ में आया कि नहीं? सॉहॉर्स, SAWHORS, दूसरा न्यूमैन्स प्रोजेक्शंस, सॉहॉर्सिया। हो गया ड्रॉ? ये बस थोड़ा सा ध्यान देना, ये एग्जैक्टली सेम बनाने हैं दोनों तरफ, यहाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट बनाना है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जैसे आपको मैंने समझाया कि अगर हम इस तरह से देखें कि हमें एक ही कार्बन विजिबल हो रहा है,
तो फ्रंट वाले कार्बन को उन्होंने इस तरह से सर्कल फॉर्म में शो किया और इससे जो 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड है दे आर शोन लाइक दिस, क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन इथेन के जो आपको पता है sp3 हाइब्रिड फॉर्म में, तो तीनों का आपस में बॉन्ड एंगल सेम होगा। अब दूसरा जो कार्बन है वो अगर हम इस तरह से देखें तो हमें विजिबल नहीं है, उसको नहीं दिखाया हुआ बुक में, एक ही दिखाया हुआ है, और उस दूसरे के हाइड्रोजन एकदम अगर इसके बैक साइड पे है कि वो हाइड ही हो गए, एकदम से आपको विजिबल नहीं हो रहे, तो उस केस में इसको हम कहेंगे स्टैगर्ड, सॉरी इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और दूसरी पोजीशन पॉसिबल जो है दैट इज, अब दूसरी पोजीशन में क्या होगा, ये एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो दूसरे वाले कार्बन है उसके हाइड्रोजन इस तरह से, डॉटेड जो लाइंस है बेटा ये बैक साइड वाला कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे वो है, जो स्ट्रेट लाइंस विदाउट मतलब डॉटेड नहीं है, सीधी लाइंस है, वो आपको सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन दिखाते हैं। इस तरह से अगर आप दो कार्बन देखो ये बॉन्ड है, दोबारा से एक बार दिखा देती हूँ, ये इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये न्यू लाइन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ये फ्रंट कार्बन को दिखाया गया, बैक वाला जब नहीं दिखेगा बिल्कुल भी तो इस तरह की होगी क्लिप, और दूसरे वाले के अगर बिटवीन होंगे इन दोनों के बीच में ही आएगा तो वो विजिबल होंगे। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, इनके बीच में जितनी भी पोजीशंस आ रही है वो स्क्यू कंफर्मेशन होती है, नो नीड टू ड्रॉ देम, वो कहीं पे भी आप बना सकते हो। कंफर्मेशन ये वाली है स्टैगर्ड। हाँ जी, अब एक ही बात बताओ मुझे, इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल आमने सामने है, तो मिनिमम डिस्टेंस पे, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब दो सेम टाइप के एटम है तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अगर क्लोजर होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इस कंफर्मेशन की कम है एज कंपेयर टू स्टैगर्ड, तो यू कैन से दैट स्टैगर्ड कंफर्मेशन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड ड्यू टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना मोर स्टेबल। और सिंगल बॉन्ड को ऐसे तो हम रोटेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री भी नहीं है रोटेशन, बिकॉज ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा पॉसिबल स्टेबल है, और 12.55 किलो जूल पर मोल ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरेटिवली, मतलब इसकी एनर्जी कम है, तो ये इतना ही हम इसको कहते हैं कि टॉर्शनल स्ट्रेन कहते हैं इसको, कि जब आप रोटेट करते हो तो इतना टॉर्शनल स्ट्रेन रहता है, तो बिल्कुल फ्री नहीं होता रोटेशन, इतना फोर्स लगाना पड़ता है आपको रोटेट करने के लिए, बट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरली अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर इटसेल्फ। तो रूम टेम्परेचर पे आप ये दो कंफर्मेशन जो है एल्केन के या इथेन के, उनको आप सेपरेट आइसोलेट नहीं कर सकते, अपने आप इंटरकन्वर्टिबल है एक दूसरे में, एल्केन की कोई भी फॉर्म पॉसिबल हो सकती है उसके मिक्सचर में, कोई मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होगा, कोई इसमें, कोई बीच वाली, जितने भी पॉसिबल क्यू कंफर्मेशंस है, ठीक है। तो बट हम समझने के लिए दो एक्सट्रीम केसेस ही पढ़ते हैं, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, इसके बीच वाली जितनी भी है उनके लिए नेम है, अगर नेम नोट करना चाहते हैं, दिस इज नोन एज स्क्यू कंफर्मेशंस, स्क्यू है, बाकी कोई भी और पॉसिबल फॉर्मेशन इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में। तो दिस इज अबाउट एल्केन्स, थोड़े बहुत 9 मिनट्स हैं अभी, लेट्स स्टार्ट विद एल्केन्स, थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लेते हैं, सिस ट्रांस से बता देती हूँ आपको आइसोमरिज्म। If you want to write here to mention this, that staggered conformation is more stable than eclipsed. Staggered conformation is more stable than eclipsed. By 12.55 kilojoule per mole. बाकी इसकी मैंने कोई डेफिनेशन तो आपको लिखवाई नहीं, इफ यू वांट टू राइट दोनों भी कुछ लिखने की वैसे अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पूछते नहीं हम डेफिनेशन, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंफर्मेशनल आइसोमर्स क्या है, मतलब सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से जो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं एक एल्केन की, these are known as conformational isomers। तो एकदम ऑपोजिट जब है आमने सामने, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे जब होंगे एटम्स, देन that position is known as eclipsed, और maximum distance पे जब होंगे then that is called staggered conformation. So next we'll start with alkenes.
alkenes, all unsaturated hydrocarbons in which at least one double bond is present. Normally alkene हम one double bond वालों को ही कहेंगे, अदरवाइज जो नेम हो जाएगा वो अल्का डाइन बन जाएगा, दो डबल बॉन्ड्स है, 3 है तो ट्राइन अकॉर्डिंगली. तो alkenes are all those unsaturated hydrocarbons having a pi bond or a double bond between any two carbon atoms. Long chain में किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में अगर double bond आ रहा है, then those unsaturated hydrocarbons are called alkenes. And actually पहले alkenes को derive किया गया था कुछ fats वगैरह, कुछ इस तरह के जो natural material हैं, vegetable fats हो गई, animal fats, तो इनका जो name था, जैसे उनके लिए paraffins था, इनके लिए जो previous term use होती है olefins. Olefins होते हैं समथिंग फैटी मटेरियल से जिनको डिराइव किया गया, ठीक है. बट दिस नेम इज नाउअडेज नॉट पॉपुलर. उनका भी पैराफिन अब यूज नहीं होता नेम, बट एंशिएंट नेम यू कैन से फॉर दैट. तो एल्कीन्स नोमेनक्लेचर बेटा भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आइसोमेरिज्म है इसका, पहले एक तो वो ये भी ब्रांच आइसोमेरिज्म शो करेंगे. फॉर एग्जांपल 5 कार्बन अगर आपने एल्कीन को ये बनाया, सपोज फर्स्ट हम ये केस बनाते हैं जिसमें पेंट 1E, सेकेंड यू कैन ड्रॉ पेंट 2E, दो तो ये हो गए, दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स. अब अगर हम इसमें ब्रांचिंग शो करते हैं, ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रांच आइसोमेरिज्म. तो ये तो दो नॉर्मल जो हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कर चुके हैं. तो इसमें एल्केन में सिर्फ चेन ही पॉसिबल थी, यहाँ पे चेन के साथ पोजीशन भी पॉसिबल है, क्योंकि आप डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हो. जितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास है सारी शो हो सकती है. डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर. थर्ड जो टाइप के आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं वो है ज्योमेट्रिकल. यहाँ हेडिंग दे देना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. राइट डाउन, इसको डिफाइन कर लो. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, a type of isomerism in which compounds having similar structural formula, compounds having similar structural formula have different arrangement of atoms, different arrangement of atoms around a pi bond. The double bond के around मेटल एटम्स का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तब वो होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो होंगे वो कन्फर्मेशनल होंगे, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से बनते हैं. डबल बॉन्ड को आप रोटेट नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे होता है, दिस इज सपोज अ सिंगल बॉन्ड. अब इसके ऊपर और अबव एंड बिलो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, अगर हम एल्काइन की बात करें, एल्कीन्स के केस में 2 ही होंगे, एल्काइंस में 4 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो अगर आप इसको रोटेट करते हो तो वो पाई बॉन्ड जो है अबव एंड बिलो क्लाउड्स वो ब्रेक हो जाएंगे. तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा अगर आप एक सिंगल पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कुछ पॉसिबल करो. तो रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, सपोज दीज आर 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, अब इसके अराउंड दो ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर वो सारे सेम हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब एक ही जैसे होंगे. बट इफ दीज 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप है, द ब्यूट-2-ईन है अगर ये कंपाउंड, तो इसके हम 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स शो कर सकते हैं. एक जिसमें ये सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं, और एक स्ट्रक्चर हम ये बना सकते हैं जिसमें सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे. तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल नहीं है. एल्केन के लिए जहां इंटरकन्वर्टिबल था क्योंकि रोटेशन पॉसिबल था, यहाँ आप रोटेट नहीं कर सकते. तो यहाँ ये पॉसिबल होगी स्ट्रक्चर या ये, और दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफर करते हैं, केमिकली तो सेम ही होंगे.
बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. बट एल्केन्स के केस में वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ वो कंफर्मेशन पॉसिबल हो सकती है क्योंकि रोटेट करता है सिंगल बॉन्ड. पाई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो 2 केसेस यहाँ पर पॉसिबल है. और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें 2 सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हो जाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. और जिसमें 2 सिमिलर ग्रुप्स सेम ही साइड पे रहते हैं, जैसे ये दोनों यहाँ है और ये यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर. So this geometrical isomerism, this type of geometrical isomerism in which 2 different arrangements are possible around a double bond, these are called, or this type of geometrical isomerism is called cis trans isomerism. Write down here. इसमें फर्स्ट लिखो cis trans isomerism, हेडिंग दे दो geometrical के अंडर, cis trans isomerism. Alkenes in which 2 different groups are present on double bonded carbon atoms. 2 different groups are present on double bonded carbon atoms. Can have two different types of arrangements. When similar groups are present on same side, when similar groups are present on the same sides of pi bond, the isomer is known as, or the structure is known as cis isomer. Draw बाद में करें ना, पहले लिख लो. The structure is known as cis isomer. And when similar groups are present on opposite sides, when similar groups are present on opposite sides of double bond,